Hello, friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So, without wasting any further time, let's jump to the topic. In previous sessions, I have told you the difference between capital and consumption goods, these all kind of things. So, there are some characteristics of capital goods. What are these? You have to only see it once. You don't have to revise it because it is all only for conceptual clarity. So these are the characteristics of capital goods. Firstly, the capital goods has to be made from a man-made process and it should be a durable good. Durable good क्या होता है? I have told you in previous classes. The capital goods so produced has to be used as an intermediate good in the manufacturing of the final good. ठीक है? Example, ट्रैक्टर. ट्रैक्टर अपने आप में एक फाइनल गुड है, बट अगर वो एक फार्मर खरीदता है, सो दैट पर्टिकुलर ट्रैक्टर इज एक्टिंग एज इंटरमीडिएट गुड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल व्हीट, है ना. मैंने आपको पिछले बार भी एग्जांपल दिया था. एंड द लास्ट वन इज इट कांट कंज्यूम्ड इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस व्हाइल सर्विंग एज इंटरमीडिएट गुड. ठीक है, वापस ट्रैक्टर का एग्जांपल. ट्रैक्टर दो लोग खरीद सकते हैं. द फर्स्ट वन, अ मार्जिनल फार्मर. मार्जिनल फार्मर खरीद रहा है, फार्मर लिख देते हैं. और एक सेकंड कौन खरीद रहा है? ट्रांसपोर्ट. एक कोई ट्रांसपोर्ट सेक्टर खरीद रहा है और दूसरा मार्जिनल फार्मर या फार्मर. सो जब ये मार्जिनल फार्मर इज बाइंग दिस ट्रैक्टर, सो ही विल प्लो हिज फील्ड बाय यूजिंग दिस फार्म ट्रैक्टर. दिस ट्रैक्टर हैज बीन मेड फ्रॉम अ मैन मेड प्रोसेस एंड इट इज अ ड्यूरेबल गुड. 15 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, कितने साल भी चलेगा. सेकेंड, it has been used as an intermediate in the production of final goods, that is crops. And the third thing, this particular tractor will not be get consumed while plowing the field. I have also gave you a term depreciation. So don't confuse depreciation with this consumption process of capital goods, because there is no perfect machine in the world. So some losses will be there in the form of wear and tear while we are using capital goods. बर्गर मेकिंग मशीन में भी wear and tear होगा कुछ, है ना. So this particular tractor is satisfying these all three conditions. That's why it has been named as capital goods. So this is some characteristics of capital good and it is for only basic conceptual clarity. ये पार्ट मैंने मिस कर दिया था इन्वेस्टमेंट का. So in year 2012 and 13 we have 33% investment in our economy, and from that period our investment is decreasing. There is a
small spike in between, I think in year 16, and after that it has been continuously decreasing and reached up to 28.01%. इसका मतलब क्या है? दिस ग्राफ शोज, एक तो पहला है वी आर डूइंग प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी एग्जाम्स एंड इन आईएएस एग्जाम there can be one or three or four statements, and one statement will be, since year 2012 our investment rate is continuously decreasing, so it is a wrong statement. Understood? Second conclusion is that it means our saving rates are also reducing. ठीक है? So our saving rate are also reducing. So what is this difference between investment and saving? ये अभी हम करेंगे. फिलहाल आप ये ग्राफ अपनी माइंड में अच्छी तरह बैठा लीजिए. So let's enter into a utopian world where there is no government sector and no external sector. I have told you in previous classes that there are four sectors in an economy: government sector, private sector, household sector and external sector. External sector में क्या क्या आ जाएंगे? Imports and जो भी हम बाहर भेज रहे हैं, exports. ठीक है? So entering into this utopian world, we are considering there is no government, no external sector and no savings in the economy. It means whatever is the income of the household sector, it has been spent on the consumption goods. इतना समझ आ गया? Let's take an example. In this particular example, there is a private firm and there is a household sector. These conditions are our assumptions. Household sector has been providing four factors of production, that is land, labor, capital and entrepreneur, to a burger company, and our labor's worth is rupees 100. So the company is compensating us with a note of 100. ठीक है? So this 100 note is holded by household sector. Now as there are no savings, the household sector is demanding rupees 100 worth of burgers, because burgers are consumption goods. In return, the service of burgers worth rupees 100 has been provided to household sector, and household sector सॉस लगा के, चटनी दबा के बर्गर ठूस रहा है. So this is more of a circular flow of money. ठीक है? Now we can calculate GDP in three ways. The particular definition of GDP, I have already told you, all final value of goods and services produced within a specified region in a specific time period. That is nothing called output or GDP of a country. ठीक है? So the first is value addition. वैल्यू एडिशन रहने दीजिए, ये इजी टर्म है, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड. तो ये देखते हैं इनकम कहाँ हो रही है हाउस होल्ड सेक्टर की. बताइए.
यहाँ हो रही है, बिकॉज दिस बर्गर कंपनी इज कंपनसेटिंग अस वाया 100 रुपीज़। ठीक है, तो मतलब इस प्रोसेस से हम जीडीपी निकाल सकते हैं। तो दैट इज नथिंग बट इनकम मेथड, है ना। रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। दिस इज अवर यूटोपियन वर्ल्ड, दिस इज अवर रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में अगर हम इनकम मेथड लगाएं तो इनकम किस किस की आ रही है? लैंड को, लेबर को, कैपिटल को, एंटरप्रेन्योर को। लैंड को मिलेगा रेंट, दिस इज द इनकम। लेबर को मिलेंगे वेजेस, दिस इज इनकम। कैपिटल को मिलेगा इंटरेस्ट, दिस इज इनकम ऑफ कैपिटल। एंड इसको मिलेगा सारा प्रॉफिट। सो इफ वी कंबाइन, add all these four factors of production's income, that is nothing but income method, and that is equivalent to GDP of our country। ठीक है, आसान था। Second easy word, expenditure. In this particular example, where we are spending, in which process, A B C D we are spending, आपको दिख रहा होगा वी आर स्पेंडिंग बाय डी प्रोसेस, है ना। क्योंकि हम जब ये 100 रुपीज़ नोट देंगे बर्गर कंपनी को, देन ओनली द बर्गर कंपनी विल प्रोवाइड अस विद बर्गर्स वर्थ ₹100। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर वे डी हैज़ बीन एग्जाम्प्लीफाइड वाया एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, एक्सपेंडिचर रियल वर्ल्ड में कैसे होगा? रियल वर्ल्ड में कौन कौन एक्सपेंड कर रहा है? 4 सेक्टर्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट, हाउस होल्ड एंड एक्सटर्नल। सो इफ वी कैलकुलेट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन ऑल 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, देन वी कैन कैलकुलेट जीडीपी, है ना। सो दिस इज रियल वर्ल्ड। द लास्ट मेथड, वैल्यू एडिशन मेथड, ये कहाँ हो रहा है बताओ? वैल्यू एडिशन मीन्स इफ वी हैव अ स्टील slab and we have converted it into an airplane, so this is the value addition to the steel। अब एरोप्लेन एक यूटिलिटी वाली चीज़ बन चुकी है। ठीक है, एक और चीज़ लीजिए, आयरन रखी हुई है और उसका हमने क्या बना दिया? स्टैचू बना दिया एक। सो दिस कारीगरी इज द वैल्यू एडिशन। तो ऐसे होता है वैल्यू एडिशन। ठीक है, सो इन दिस एग्जाम्पल हमको कहाँ दिख रहा है वैल्यू एडिशन? दिस बर्गर कंपनी हैज़ टोमेटो, पोटैटो, चीज़, bread। By combining all these things, it is making burger in burger making machines, and these particular burgers are fed to household sector। तो मतलब यहाँ हो रहा है वैल्यू एडिशन इस वाले प्रोसेस में, सी में। ठीक है, अगर ऐसे ही हम पूरे फर्म्स का वैल्यू एडिशन निकाल ले विच आर ऑपरेटिंग ऑन द इंडियन सॉइल्स, सो वी कैन गेट टू अवर जीडीपी। समझ आ गया आपको? तीन मेथड, इनको अभी और एग्जाम्पलीफाई करेंगे। ठीक है, सो कमिंग बैक टू दिस एग्जाम्पल, वी हैव सीन डैट अगर हमने ये रूट फॉलो किया, सो अवर इकोनॉमी विल बी stagnant। Why? Because there are no savings in the economy and the whole income which is in pockets of household sector have been spent on the consumption goods। वड़ा पाव खा रहे हैं हम, बर्गर तो अमेरिकन है ना। वड़ा पाव went to America for graduation is nothing but burger। So आगे चलते हैं।
Take another example, utopian world second. No government sector, no external sector, but now there will be saving of ₹50. ठीक है, कैसे होगी अभी बताते हैं. Household sector is providing 4 factors of production worth ₹100 to the burger company. Burger company is compensating for our worth and giving us ₹100 note to the household sector. Now household sector has become intelligent and it spent only ₹70 on the consumption goods and ₹30 इन सेविंग्स अकाउंट. ठीक है, अपने पास क्या करेगा रख के, इससे अच्छा बैंक में जमा कर देगा, बिकॉज देयर इज ऑलवेज द फियर ऑफ थेफ्ट. जब भी घर में रुपए पड़े हो सो ये बैंक को दे देगा इससे अच्छा. ठीक है, और सेविंग भी कर ली. नाउ द हाउस होल्ड सेक्टर विल डिमांड ₹70 बर्गर फ्रॉम द बर्गर कंपनी एंड द बर्गर कंपनी विल गिव द बर्गर वर्थ ₹70 टू द हाउस होल्ड सेक्टर, और वो दबा दबा के खाएगा. This particular 30, the household sector will deposit it to banks or any other financial institution, and these banks have to earn the money. आपको पता है ना, बैंक्स भी कमाते हैं रुपए. कैसे कमाते हैं? हम जो भी पैसा बैंक्स के पास रखते हैं वो बैंक्स उन्हीं पैसों को, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे पैसे हैं ना. हम जैसे मैं हूँ एक हाउस होल्ड सेक्टर, मैंने ₹100 दे दिए और किसी ने ₹100 दे दिए और किसी ने ₹200 दे दिए. So there is a large amount, large pool of money that is accumulated in the bank's treasury. अब ये जो 10 करोड़ 20 करोड़ 200 करोड़ लोन है, ये देगा ये कैपिटलिस्ट को, इंडस्ट्रियलिस्ट को. ठीक है, और उस पर कमाएगा ये इंटरेस्ट अच्छा खासा. सो डेट्स हाउ बैंक अर्न्स मनी. ठीक है, उनकी भी इनकम होती है. So these banks will give loan to this burger company of worth ₹30. Now these entrepreneurs are very intelligent people. ठीक है, they always think to expand their businesses, so to expand their profit margins. So this particular ₹30 saving done by the household sector deposited in banks will give loan to burger company, and burger company will invest this money in the formation of capital goods like purchasing a new machinery जो मेयो भी डाल के दे बर्गर में. सो इट इज क्रिएटिंग वैल्यू एडिशन, है ना. सो दीज ₹30 विल बी यूज्ड इन क्रिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स. तो आपने देखा कि यहाँ हुई थी सेविंग्स, बर्गर कंपनी के पास जब आई ये हो गई इन्वेस्टमेंट. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दिस इज एन एंटरप्रेन्योर. Entrepreneur will invest this money in the creation of capital goods. Investment करेगा ये. So you know this is the relationship between savings and capital goods, है ना. पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितनी ज़्यादा सेविंग्स हो उतनी ज़्यादा फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल गुड्स हो, उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो. बट इन दिस यूटोपियन एग्जाम्पल वी हैव कंसिडर्ड देयर इज नो गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर रोल. ठीक है, पर ऐसा भी नहीं ये गलत हो जाएगा. नो, दिस विल होल्ड ट्रू इन एनी सिचुएशन. मोर सेविंग्स मोर इन्वेस्टमेंट. पर वो कितनी ज़्यादा होगी कितनी कम होगी, प्रोपोर्शनेट लेवल पे इंक्रीज होगी, डेट इज डिबेटेबल. अंडरस्टूड? सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अब ये 3 मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी देख लेते हैं. Assume that this is the whole economy. There is only one farmer and one baker. So the whole economy depends on this production of farmer and baker. ठीक है.
The farmer is producing wheat worth rupees 100 and 50 rupees it is going to कंजम्पशन सेक्टर। कैसे? जो 50 रुपीज़ वर्थ ऑफ व्हीट है वो फार्मर और फार्मर की फैमिली खुद कंज्यूम कर रहे हैं, तो फार्मर बिलोंग्स टू कंजम्पशन सेक्टर। आई हैव टोल्ड यू इन बेसिक क्लास। एंड दिस पर्टिकुलर 50 रुपीज़ वर्थ व्हीट विल बी गिवन टू द बेकर। कैसे? सेल कर देगा ये सेल कर रहा है बेकर को, ठीक है। नाउ बेकर हैज अ सुपर पावर। बेकर विल टर्न दिस व्हीट इनटू ट्रैक्टर, ठीक है। तो किसमें करेगा? ब्रेड में, ऑफ कोर्सली। सो दिस पर्टिकुलर व्हीट विच वॉज सोल्ड फ्रॉम फार्मर टू द बेकर विल बी कन्वर्टेड इनटू ब्रेड। तो ये ब्रेड क्या है? वैल्यू एडिशन है, और प्लस दिस 50 रुपीज़ व्हीट एज इट इज। अंडरस्टूड? फार्मर ने 100 रुपये वर्थ के व्हीट उगाई, 50 रुपये अपनी फैमिली को खिला दिया, 50 रुपये वर्थ व्हीट उसने बेच दी, 50 रुपये वर्थ व्हीट बेकर के पास आ गई, उसने वैल्यू एडिशन करके ब्रेड बना दी, एंड नाउ ही इज डिमांडिंग रुपीज़ 200 इन द मार्केट। क्यों? क्योंकि ये सेल करेगा ये ब्रेड, ठीक है। तो मुझे ये बताओ वैल्यू एडिशन कितने का हुआ है? वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी कितने का हुआ है? ये कंसेप्ट समझ आ गया ना? पूरे इकोनॉमी में दो ही प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, एक फार्मर एक बेकर। तो वैल्यू एडिशन कितने का हुआ है? फार्मर ने इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन कितने का किया है? अगर फार्मर ये व्हीट नहीं उगाता, इफ द फार्मर हैज नॉट ग्रोन दिस पर्टिकुलर व्हीट, तो क्या होता है इकोनॉमी में? ये 100 पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता, क्योंकि व्हीट ही नहीं है, तो बेकर क्या करेगा? सो द वैल्यू एडिशन डन बाय फार्मर इज रुपीज 100, ठीक है। नो व्हाट इज द वैल्यू एडिशन डन बाय बेकर? बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। 200, हाँ या नहीं? नहीं। क्यों? अगर आपने निकाल लिया है, इफ यू हैव फाउंड आउट द आंसर, देन kudos to your brain. In this 200, 50 is contribution of farmer, so that amount will be 250, the value addition of 250, ठीक है। now GDP क्या होती है? GDP बोलती है all final value of all goods and services, final value of all goods and services। तो फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज क्या है इन मार्केट? क्या बोल रहा हूं मैं? इन मार्केट फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट इंटरमीडिएट, फाइनल। ये 100 है क्या मार्केट में? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि 50 तो उसने घर में ही खा लिया, कंजम्पशन सेक्टर में चले गया। सो दिस 50 इज द फाइनल वैल्यू, क्योंकि ये सेल हो रहा है 50। आगे बताओ क्या ऐड करूं? बेकर का कितना ऐड करना है? फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट, बताओ 200 होगा या 150 होगा? सेल क्या हो रहा है? व्हीट हटा के बस इतना नहीं ना, पूरा सेल हो रहा है मार्केट में। विच इज इक्विवेलेंट टू, सो आवर वैल्यू एडिशन process is able to calculate the GDP. So this is nothing but value added calculation. Income method I have explained you before in that particular example only.
दिस इज द इनकम मेथड इन द रियल वर्ल्ड। अगर हम सारा रेंट कलेक्ट कर लें, सारा रेंट कैलकुलेट कर लें, सारा प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें, सारे वेजेस कैलकुलेट कर लें और सारे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें, सो डेट विल वी विल एबल टू फाइंड आउट द जीडीपी ऑफ आवर कंट्री। सो दिस इज नथिंग बट इनकम मेथड। ठीक है। एक्सपेंडिचर इक्वल टू by which sectors expenditures have been done. I have told you consumption sector denoted by C dash plus प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। वो बहुत ही कम वो कंजम्पशन गुड पे स्पेंड करता है, जैसे कोई उनके ऑफिस में आ गया तो पानी पिला दिया, चाय पिला दिया, सो डेट इज वेरी मिनिस्कुल। सो मोर ऑफ द इन्वेस्टमेंट पार्ट। गवर्नमेंट सेक्टर प्लस एक्सटर्नल सेक्टर, दीज आर द एक्सपेंडिचर्स ऑफ ऑल द सेक्टर्स। ठीक है। और एक कौन सा एक्सपेंडिचर है, द एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। ठीक है। जो भी मेरे टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उनका ये एक्सपेंडिचर का सम है। तो इसमें से कंजम्पशन गुड्स को मैं C माइनस CM लिख दूं। ये क्या डिनोट करता है, दिस इज होल ऑफ द कंजम्पशन गुड डोमेस्टिकली प्लस इंटरनेशनली, एंड CM इज द एक्सपोर्ट्स विच हैव बीन कंज्यूम्ड। ठीक है। कंसीड इज डिनोटिंग द टोटल कंजम्पशन, प्राइवेट एक्सपोर्ट्स का भी और डोमेस्टिक का भी। CM डिनोट्स फॉर ओनली एक्सपोर्ट्स। तो इन दोनों का क्या आ गया हमारे पास, द डोमेस्टिकली कंजम्पशन सेक्टर। ठीक है। आई को भी मैं वैसे ही तोड़ूंगा मैं, एवरी इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, द import investment in the economy। यहां भी ये import है, क्यों, क्योंकि ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड के साइंस है। ठीक है। जो भी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हुआ है गुड्स उसका ही कंजम्पशन है। डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड जो इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट करेंगे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड का, उसका इन्वेस्टमेंट है। दिस इज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और ये है एक्सपोर्ट्स। ठीक है। क्यों, क्योंकि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है तभी तो एक्सपोर्ट हो रहा है ना, तो ये वो एक्सपोर्ट है। नाउ दिस इज होल कन्वीनियंस के लिए आपकी डोमेस्टिक। तो हम क्या करेंगे, ऑल द कंजम्पशन सेक्टर्स पूरा माइनस इंपोर्ट्स जो बाहर से यहाँ आ रहा है और फिर हम कंजम्पशन कर रहे हैं। जैसे मान लो लाइफ बॉय है, लाइफ बॉय अमेरिका से इंडिया आ रहा है एंड देन द हाउस होल्ड सेक्टर इज कंज्यूमिंग, दैट इज इंक्लूडेड इन दिस। अगर ऑल में से इसको माइनस कर ले इंपोर्ट्स को, तो हमारे पास डोमेस्टिक बचेगा। इन्वेस्टमेंट पार्ट में हमारे पास ऑल इन्वेस्टमेंट माइनस इंपोर्ट्स, तो हमारे पास डोमेस्टिकली आ जाएगी। सेम गोज फॉर C माइनस C डैश एंड X डैश। ठीक है। सॉरी यहाँ मच्छर बहुत है यार। सो ये जो जितने भी इंपोर्ट्स हो रहे हैं मैं इनको अलग कर देता हूं। C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस
CM प्लस IM प्लस GM। सो अब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, CIG ऑल, ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड का था, अब ये सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द सॉइल्स ऑफ इंडिया। दिस इज एक्सपोर्ट, आई हैव टोल्ड यू दिस इज एक्सपोर्ट, एक्स डैश ही रहेगा, उसको कोई छूना नहीं है। ये सब हमने कंबाइन कर दिया इंपोर्ट्स वाले, सो दीज टुगेदर फॉर्म आवर इंपोर्ट्स। सो वी गेट द फॉर्मूला ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, कंजम्पशन सेक्टर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस imports minus exports. So this was the formula of expenditure method. समझ में आ गया? So इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और GDP, ठीक है। अब इंडिया में NSO GDP कैसे कैलकुलेट करता है वो हम देखेंगे अगली क्लास में। फॉर नाउ दिस इज एनफ, क्योंकि इट इज़ मोर ऑफ अ टेक्निकल सब्जेक्ट, तो मज़ा भी आता है पढ़ाने में, और छोटी क्लासेस होंगी तो और मज़ा आएगा पढ़ने में। So if you like this video, if your concepts are getting clear, please share it with your friends and subscribe to this YouTube channel. तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।